السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی فون کیے تھے عثمان بھائی؟ کون بول رہے ہو؟ محمد عمران شیخ بول رہا ہوں. اچھا، ہاں صبح کی تھی میں نے. جی بس وہ کہا تھا میں جب فری ہو جاؤں گا کال کروں گا آپ کے پاس، اچھا اچھا. اس لیے کال کیا تھا. پھر آپ نے ریسیو ہی نہیں کیا ٹائم پہ. ہاں میں اس ٹائم بزی تھا، آپ کو میں دوبارہ کال کیا تھا، آپ نے وہ ریسیو نہیں کیا. ہاں میں نے ویسے آپ کا نمبر سیو نہیں کر سکتا، بس وہ ٹائم کے حساب سے میں نے دیکھ کے آپ کو کال کیا تھا. اچھا 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 ہاں فرمائیں. کیا فرماؤں، آپ ہی فرماؤ کچھ. ارے آپ نے فون کیوں کیا تھا بھائی صبح؟ میں نے تو آپ کو فری ہونے کا وعدہ کیا تھا نا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا. اچھا اچھا، آپ مطلب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی میں فری ہوں. ہیں؟ آپ یہ بتانے کے لیے فون کر رہے تھے کہ آپ فری ہو؟ ہاں جی، یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا. بس. ہاں اچھا نہیں وہ آپ کہہ رہے تھے نا میں اس کی تحقیق بھی کر کے دوں گا، وہ فضائل اعمال والا میں معاملہ. تحقیق میں اس کو میں تلاش رہا تھا، اصل میں نے پڑھا ہوا تھا اس میں، وہ تلاش رہا تھا، لیکن جو کہ موٹی کتاب ہے تو اب ان چیزوں کی کو آدمی نوٹ، اگر ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا نا کہ آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا ان کا، تو اس میں کیا تو دیکھ ہم رہے اس تھے کو. آپ؟ فضائل اعمال میں یہ دیکھ رہے تھے وہ لکھا ہوا ہے یا نہیں، کیا دیکھ رہے تھے؟ ہاں فضائل اعمال میں وہ فضائل گشت کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا آپ. ہاں کہ یہ جو فضائل گشت کے بارے میں تو بات ہو گئی تھی، اس پر تو آپ نے بول دیا ہاں تھا کہ بھائی یہ نا علم سیکھنے اگر کوئی بندہ گھر سے نکلے اس کے لیے ہے، تو اس کا تو اس میں میٹر ہی ختم ہو گیا تھا. ارے کوئی بندہ اگر گھر سے علم سیکھنے نکلے ہاں تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہے، گشت کے لیے تھوڑی تھا. وہ آپ نے کہا تھا گشت میں بھی اس کو فٹ کر سکتے ہیں، میں نے کہا آپ سے کیسے فٹ کر سکتے ہیں، دلیل پیش کریں. نہیں، اللہ کے راستے کے فضائل ہے. اللہ کا راستہ؟ اچھا تو اللہ کا راستہ آپ طے کرو گے، رسول اللہ طے کریں گے، صحابہ کرام طے کریں گے، کون طے کرے گا یہ کہ اللہ کا راستہ ہے؟ بھائی ایک بندہ گھر سے نکلا، سنیے میری بات، ایک بندہ گھر سے نکل گیا اجمیر کے لیے، تو وہ تو سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، میں نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے سمجھنے سے نیک تھوڑی ہو جائے گا وہ. بھائی نیک کام اور اچھا کام جس کو سنت کہا جائے گا وہ تو وہ ہوگا جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اپنے نبی کو، اور نبی نے وہ کیا ہو، اور نبی کے بعد صحابہ نے کیا ہو. تو صحابہ نے یا نبی نے کس کے گھر گھر جا کر کنڈیاں بجائیں، لوگوں کو آوازیں لگائیں کہ بھائی آ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مغرب کی یا عصر کی نماز پڑھ لو. تو دنیا میں کون سا نبی اب تک ایسا آیا ہے جس نے دعوت کا کام نہیں کیا؟ دعوت کسے کہتے ہیں بھائی؟ بتاؤ، اپنے دین پر استقامت کا سبب ہے دعوت. اور وہی تو تم پوچھ بتاؤ رہا ہوں، کسے پہلے کہتے ہیں؟ دعوت تو سمجھنے، دعوت ہوتی کیا ہے؟ ہاں جی، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا. تو آپ تو مغرب کی نماز کے لیے آتے ہو نا، اصل میں گشت کرتے ہو کہ بھائی چلو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے نماز پڑھ لو. تو وہ تو اچھا، مؤذن نہ کرتا ہے اس کام کو، مؤذن کس نے اذان کہا ہم دیتا ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے، کس نے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو؟ اور کس لیے بلاتے ہو؟ نماز کے لیے نہیں بلاتے، استغفر اللہ. اور پھر کس لیے بلاتے ہو؟ تو نماز صرف نماز کے لیے تھوڑی نہ بلاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں نماز بھی آ جاتی ہے اور سارے دین کے کام آتے ہیں. صرف ایک ہی ہم دن لوگوں کو ہفتے میں؟ ہفتے میں ایک ہی دن، ایک ہی وقت؟ آپ شاید ودیش میں رہتے ہو کہیں. ارے اللہ کے بندے، ہفتے میں صرف ایک ہی دن اور ایک ہی وقت بس؟ ارے بھائی، روزانہ پانچ وقت اعمال ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور روزانہ 5 وقت دعوت دی جاتی ہے. بعض جگہ 24 گھنٹے بلایا جاتا ہے لوگوں کو. کائے کی دعوت دی جاتی ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں میں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بولا تو ہاں اس کا کیا مطلب ہے بتائیے نا. جتنی بھی خیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سکھاتے ہیں ہم لوگ. ہاں تو ان میں نماز ہے یا نہیں؟ شادی کا آج تو نماز بھی ہے اس میں. تم ہاں تو لوگ صرف مجھے، نماز تک محدود رکھتے ارے ہو نا. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے یہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کون سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کو بلایا اس واسطے کہ بھئی آؤ چلو میں تم کو دین سکھاؤں گا اور تم نماز بھی پڑھ لینا مغرب کی یا عصر کی. اچھا، بتاؤ مجھے حدیث تو پیش کرو. کتنی کتابیں پڑھے ہو حدیث کی؟ میں نے کافی پڑھی ہیں اللہ کا شکر ہے.
कभी ये हदीस पढ़ी तुमने? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार गए और बाजार जाके लोगों को यूं कहा, बाजार वालों तुम्हें किस चीज ने आजीज कर दिया? तुम यहाँ बैठे हो और मस्जिद में अल्लाह के नबी की मीरास तकसीम हो रही है। मीरास तकसीम हो रही है? हाँ। मीरास तो किसको उन्होंने कहते हैं? सुन लो पहले बात को पूरी सुनो। लोग गए मस्जिद में जाकर देखा और वापस आ गए। तब तक आप रजी अल्लाह अन्हु बाजार में ही बैठे थे और लोगों से पूछा कि क्या हुआ, वापस आ गए? उन्होंने कहा कि हम मस्जिद में गए लेकिन हमने तो कुछ भी तकसीम होते हुए नहीं देखा। कि तुमने वहाँ क्या देखा? कि हमने वहाँ देखा कुछ लोग जो है सीखना सिखाना कर रहे थे, कुछ हराम और हलाल का तज़किरा कर रहे थे, कुछ जिक्र अज़कार में मशगूल थे। अच्छा जी, इस तरह कई बातें बताई उन्होंने। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम पर अफसोस है, यही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। अच्छा, हाँ। तो फिर नहीं पढ़ी आपने ये हदीस? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन सी मीरास का मुतालबा करती थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से? क्या भाई वो कौन सी मीरास थी जिसका हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुतालबा किया करती थी? वो तो बागे फिदक था। बोलो। तो मीरास था ना वो। फिर हजरत उमर फारूक ने किस चीज पे बोला? हजरत उमर ने क्या कह के उसको रद्द किया? हाँ, कि नबी की मीरास जो है ये सिर्फ वो माले गनीमत के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। और माले गनीमत अल्लाह के नबी की साफ साफ हदीस है कि उलमा अंबियाओं के वारिस है और नबी दिनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते, इल्म का वारिस बनाते हैं। अभी सुनो, यहाँ पे तो मीरास है। देखो, आप अपनी बात को खुद रद्द कर रहे हो। अभी आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से एक बात, हाँ। उनका एक असर पेश किया कि मस्जिद में उनकी मीरास तकसीम हो रही है। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई फिर अगर ये मीरास थी तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किस चीज का मुतालबा किया था? तो आपने कहा कि वो माले गनीमत था। एक तो मुझे ये साबित कीजिए। सुनो, वो दुनिया के झूठ नहीं चलेगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो दुनियावी एतबार से करो कि वो माले गनीमत था। एक आखिरत के एतबार से बागे फिदक क्या था? बागे फिदक आप अलैहिस्सलाम की मीरास थी। अरे वो बागे फिदक आया था कहाँ से? फिदक नहीं, फदक होता है। फदक होता है, फदक। वो पढ़ने का अंदाजा होता है, ये बात समझ में। अच्छा। हाँ। मतलब अम्मी को अब्बू पढ़ सकते हैं। हैं? अम्मी को अब्बू पढ़ सकते हैं। इस और उसमें उर्दू की स्पेलिंग सेम होती है, आपको पता है? उर्दू नहीं, उर्दू होता है, लफ्ज उर्दू है। अरे उर्दू ही बोल रहा हूँ भाई। नहीं, उर्दू बोले थे। हैं? उर्दू बोले थे आप, उर्दू। आपको समझ में आ रहा हो तो बात अलग है। अच्छा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है मुझे जुकाम हो रहा हो, तो समझ रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मीरास थी तो इसको हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहतर समझिए। आप के बारे में क्या कहता हूँ? अपनी अकल मत दौड़ाओ। इस हदीस के बारे में क्या कहता हूँ? हजरत अबू हुरैरा की मुझे आप हदीस मैंने हजरत अबू हुरैरा की हदीस बताई, आप इस हदीस के तक क्या समझे हो ये बताओ। ये सुनिए आपने हदीस? किस किताब में है भाई? किस किताब में है ये? आप तो फिर हदीस का ऐसे मुतालबा कर रहे हो जैसे बहुत बड़े मुज्तहिद हो। और मैंने हदीस बताई। मैंने कहा कि आपने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी है? तो बहुत सारी हदीस की किताबें हैं, लेकिन आपके सामने अगर नहीं गुजरी है तो फिर दूसरा आदमी क्या करेगा इसमें भाई? मतलब आप कुछ भी झूठ बोलोगे मैं हदीस मान लूँ उसको, है? झूठ नहीं। सुनो, तो फिर बताओ अगर आप हदीस नहीं जानते हैं, अगर आप हदीस पढ़ना नहीं जानते हैं तो दूसरे आदमी को झूठ कैसे बता रहे हो आप? भाई ये हदीस तब साबित होगी ना जब आप मुझे दोगे, दिखाओगे। ये सुनो, मैं आपको दिखाऊंगा। आपने सीखने के लिए फोन किया था या मुनाजरे के लिए फोन किया था? जैसे भी आप समझो। जैसे भी आप समझो। आपने तो कहा था मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। हाँ तो सिखाइए ना फिर मुझे। तो सीखने वाला भाई आमी होता है, दलील थोड़ी ना मांगता है वो। अच्छा, आप मुस्तहिद हो। जब आप मदरसे में गए थे, उस्ताद ने आपको कहा था अलिफ, तो आपने कहा था दलील पेश करो। और लिखा हुआ था ना अलिफ, गधे। पहली तो बात आप गए नहीं होंगे मदरसे में, मुझे पूरा यकीन है। अलिफ लिखा हुआ होता कायदे में। कायदे में लिखा होता है अलिफ।
तो आपको तो पढ़ना नहीं आता ना, आपके अरे आपको दिखावा था, पढ़ना मैं आपको तो बोल रहा हूँ, मुझे मानना ही पढ़ना आता था। सुनो, अरे आपको तो मानना होता है ना, तो आपको मानना पढ़ना उसको, थोड़ी ना अरे आता उसको है। ही तो माना जो लिखा हुआ था। अब तुम्हारी कही हुई बात को मान लूं? नहीं आप सुनो, आप तो मैं भी तो लिखी हुई बात बता रहा हूँ। हाँ तो कहाँ है वो लिखा हुआ, ये पूछ रहा हूँ ना। आप मुझसे पूछोगे किसको? लिखा है, मैं बताऊंगा आपको कायदा उला उड़ाओ उसमें। ये हदीस आप तक नहीं पहुँची? अरे अल्लाह के बंदे, मुझे आप ये तो बताओ कि वहाँ है। हदीस हदीस कर रहे हो आप घंटों से, ये तो बताओ कि फला किताब में है। मुझे पता तो नहीं था ना कोई गैर मुकल्लिद सामने आएगा। अच्छा तो वैसी ऐसी भाषण हाँ, देते हो, झूठ मूठ इसलिए बातें मैंने मिला के नोट नहीं किया। अपनी मजबूत हदीस है, सुनो मजबूत हदीस है। और अपनी हजरत अबू तरफ हुरैरा से का अपनी हजरत तरफ अबू से हुरैरा झूठ का मूठ मकाम बातें जानते मिलाते हैं? हो, झूठे इंसान, और किसको? बोलते हो कि मैंने हदीस पढ़ दी। किसको? किसको? उसको। मैं फिर किसको उसको करने हजरत लगते अबू हो? हुरैरा का मकाम जानते हो आप? जानता हूँ, तुम्हारे आलिमों ने उनके बारे में लिखा है कि वो गैर फकीर है। किसको? तुम्हारा हिलाल इब्न उमैया, मुरारा इब्न रबी, इनके बारे में पता क्या लिखा है तुम्हारे उलमा ने? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? इनको मुशरिक लिखा है तुम्हारे उलमाओं ने। किसे? मुशरिक लिखा है तुम्हारे उलमाओं ने। कैसे आपकी बात इनको का यकीन करूँ? कहाँ लिखा है बताइए किताब का किसको? नाम। किसको? अब उसको बस ये बेवकूफी मत किया करो। किसको? किसको? अरे मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, कहाँ लिखा है, किस किताब में, नाम बताओ। हाँ तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह आपको। मैं चला दिया मुंह, ऐसे झूठ बोल दो मुंह भर भर के। दौरा पड़ने लगा क्या? गैर मुकल्लिद को दौरा पड़ता है क्या? देखो सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ। तो गैर मुकल्लिद देखिए को दौरा आपके पड़ता है क्या? इमाम नहीं, ये मौलाना आपने अशरफ जो अली मुंह बनाया, थानवी, ये सुनिए जो ना। आपने मुंह बनाया था, अभी हाँ। जो मुंह बनाया था आपने नकल बुरा उतारने लगा? वाला, बुरा लगा आपको? नहीं तुम्हें अल्लाह के नबी तुम्हें पता है ये चीज कुरान और हदीस के खिलाफ जा रही है। अभी जो तुमने मुंह बनाया था तुम्हारा चिढ़ाने के इल्जाम नाम लगा का। ये कुरान हदीस के मुआफिक है। किसको? किसको? अबे बेवकूफ इंसान, ये मत कहा करो किसको। ये पूछा अरे करो कहाँ मैंने बेवकूफ, इल्जाम लगाया, ये कहा करो मैंने किधर इल्जाम लगाया। बात मेरी करने की बात, तमीज है नहीं, बात करने चल देते हो। मुंह से निकली नहीं तुम पकड़ लेते हो। अरे तो तुम्हारी ठीक है? बेतुकी बातें मैं किसको? क्यों मानूं? मेरी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको मुशरिक कहा है? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसको? हाँ किसको? मैं दिखा दूंगा। फिर यही कह रहे हो अरे किसको? मैं दिखा दूंगा। अरे हदीस में दिखा दूंगा भाई। हाँ तो मैं किधर दिखा लिखा दूंगा। है, कहाँ हाँ दिखाओगे? मैं दिखा दूंगा, हदीस में दिखा दूंगा। तुम्हारे नंबर अब्बू सेव ने कर जो लेना, किताब ठीक है? लिखी उसमें लिखा हुआ है किसको? बदतमीज इंसान। किसको? किसको? फिर हिला यही कह रहे हो किसको? ये मेरा तकिया कलाम है। अरे ये मेरा तकिया कलाम है। तो हदीस, कौन हो तुम? शायर हो? ये और मेरा कौन तुम? तकिया मुहद्दिस कलाम हो? है। मुफस्सिर हो? किसको? किसको? फिर यही गधे पने बातें किसको? तुमको? अरे और किसको? नालायक, हाँ नालायक, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें भेज दूंगा। चलो जब भेजना फिर बात करना, इतने मुझे फोन मत करना जब तक तुम्हारे पास में सारे दलाइल मौजूद ना हो जाए इंसान। चलो भेजो मुझे, वो कितनी देर में भेज रहे हो? नालायक आदमी, मैं तुम्हें भेजूंगा। कितनी देर लेकिन में? तुम्हें ये कितनी हदीस, देर में? ये हदीस अगर मैं भेज दूं तो तुम क्या करोगे ये बताओ। अरे पहले भेज तो सही। अरे मैं भेज दूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कोई झूठा जब खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरीके से तहकीक कर लो। कल तुमने इल्म गैर जाहिर किया था ना अपना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब झूठा तुम्हें कोई खबर दे मैंने तो उसकी तहकीक कर लो। तुम झूठे फांसी के इंसान हो, तुम्हारा क्या भरोसा है? कल तुमने दो चीजें बदगुमानी वाली अरे की थी। हमारी किस किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने किसी सहाबी को मुशरिक कहा? अल्लाह की तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हदीस में दिखाऊंगा। पहले मेरी बात, हदीस में लिखा हुआ है। हदीस में दिखाऊंगा। अच्छा, हमारे आलिमों की किताबें हदीस हैं, ये इसका इल्मी मेयार है। जाहिर को तुम्हारे पता नहीं। आलिमों की किताब हदीस कैसे हो सकती है? मैं तो फिर हदीस का नाम क्यों ले रहे हो? तुमने मेरा आलिम का नाम लिया ना कि उन्होंने मुशरिक कहा है, तो ये कहो कि वो किताब है, हदीस नहीं है। तुमने तो सुनो, तुमने अपने आलिमों को खुद जूतों से पीटना शुरू कर दिया। अब दुनिया में भी जूतों से पीटेंगे और आखिरत में भी जूतों से अभी तो पीटेंगे। तुम्हारी पिटाई हो रही है जूते और चप्पल दोनों से। एक माला तुम्हारे गले में है, एक सर पे। तुम पीटते नहीं हो जूतों से। मैं तुम्हें पीट रहा हूँ चप्पलों से। तुम पीटते नहीं हो जूतों से अपने उलमा को। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी नंगा करके पिटाई लगाई है मैंने। इस कुछ फहमी में रहना। ये दौरा पड़ने वाली हरकतें। देवबंदियों, ये तुम्हारा मुनाजिर गधे को बोलना तक नहीं आता। इसने 2 इल्जाम लगाए हैं, एक भी साबित नहीं किया। एक तो बोल रहा था कि हमारे जो वो है उलमा, उन्होंने माज़अल्लाह 2 सहाबियों को
मुशरिक कहा, उसका नाम भी बताया इस गधे ने। एक तो इस पर ये जिम्मेदारी है कि उस बात को साबित करेगा। दूसरा ये बदतमीजी नहीं, इस झूठे लानती ने जो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, इसने हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस का नाम जिक्र किया कि भाई ये हजरत अबू हुरैरा का असर है। मैंने इससे पूछा बदबख्त वो किस किताब में है, तो बदबख्त को नाम तक नहीं पता, मुनाजरा करने आया है पागल। अरे धान में रोटी खाता तू मुंह में से, तू कितनी हदीसें पढ़ा हुआ है ये तो बता दे। अबे मुझे ये बता, तू कान से रोटी खाता है या मुंह से? अगर ये बता कितनी हदीसें पढ़ा हुआ है। चप्पल मारूंगा तुझे, वरना इल्म सीख के तब मुझसे बात करना है। अरे आ गया तू कलमा पढ़ रहा था, कभी बोल रहा था, ये सुअर बदतमीजी पे आ गया, तेरे इमाम का कलमा पढ़ रहा था। आ गया। जब तक रेफरेंस न दे तब तक बात मत करना।